Okay, question 1. Who is the writer of the Happy Prince story? So, who is the writer? Oscar Wilde. Okay, now question 2. Why was the prince called happy? What was the reason? So, because he never cried, because he was very lucky, because he had everything. Okay, it might be answer, but now read the next answer, the last one. Because he always smiled and was living in palace of happiness. Okay, so this is your correct answer, D. Now what is question next? What was done after the prince's death? Prince के मरने के बाद क्या हुआ? His statue was made, right? He was forgotten, no. People cried, no. People became corrupt, no. So this is the correct answer. His statue what? Made. Now, next question is what? Yep. So, whom did the Happy Prince send the ruby to? Ruby किसे भेजा था Happy Prince ने? A seamstress, a poor woman. The first one, right? Okay. So, what made the seamstress child relax? Seamstress की जो बच्चा था, जो child था, वो relax हो गया. कैसे? क्यों? तो रूबी के कारण no. हैप्पी प्रिंस के कारण नो, स्वेलो के कारण नो. एक्चुअली स्वेलो ने फैनिंग किया था उसे. ओके, दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग रिलैक्स. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? होम डिड द प्रिंस सेंड द सफायर टू? प्रिंस ने सफायर किसे भेजा था? मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी. पुअर लेडी नो. A beggar? No, none. So here this is your correct answer. Match girls को उन्होंने सफायर भेजा था, that red color stone, precious stone, right? And young writer को. Now next one. So why did Happy Prince send the sapphire to a young writer and the match girl? तो young writer को जो है उन्होंने sapphire क्यों भेजा था? To send hope and make them happy. Yeah, this is the correct answer. To show them power, to surprise them, to help them. This is the correct answer. Okay. ये भी हो सकता है. If you are thinking about this, yeah, it could be your answer also, no problem. So what did the swallow notice while flying over the city? ओके, तो स्वलो ने क्या नोटिस किया जब वो सिटी में फ्लाई कर रहा था ओवर द सिटी? अ प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच. मैनी पीपल एंड देयर प्लाइट. Many people, poor people, and many waste things now. So this is your correct answer. Poor and greed of the rich, right? Okay. Now next question. What made Happy Prince blind? Happy Prince को blind जो था वो कैसे हुआ? गिविंग अवे टू सफायर्स एंड एरो शूटिंग स्टोन पेल्टिंग. नो, गिविंग अवे टू सफायर्स. जो उसकी आईज जो थी, राइट, उसकी आईज में ये जो था ये क्या लगा हुआ था? ये तो सफायर ही लगे हुए थे, है ना? दिस वाज रेड स्टोन. ओके, नॉट रेड, ब्लू कलर. या ब्लू कलर, ब्लू वन, है ना? ब्लू स्टोन जो था वो प्रीशियस स्टोन, दैट वाज सफायर. ओके. Now, why was the swallow not ready to move to Egypt? वो क्यों नहीं ready था? जो swallow था वो Egypt क्यों नहीं ready था? Because Happy Prince become a blind because of kindness of Happy Prince, because Happy Prince would be alone. No. So this is your correct answer, because Happy Prince become blind. Okay, last one C. इस वजह से वो उसे छोड़कर नहीं गया. What moved swallow's heart? Swallow's heart का क्या हुआ? हैप्पी प्रिंस काइंडनेस, हैप्पी प्रिंस एसेट, ऑल नो. हैप्पी प्रिंस काइंडनेस. जो स्वलो का हार्ट था वो क्यों चेंज हुआ? दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट मूव स्वलोज हार्ट मीन्स आखिर ऐसा क्या हुआ उसका हार्ट चेंज हो गया? तो हैप्पी प्रिंस के काइंडनेस. व्हाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट्स? हैप्पी प्रिंस ने अपने सारे एसेट्स जो थे, एसेट्स इन द सेंस व्हाट? In the sense you can say ruby, sapphires and gold leaf, right? To eradicate misery and sorrow from his city, to show his power, to show his riches. No, this is your correct answer, A. Now name the most precious things in the story that the angel took to give to God. Okay, so this is important. First read the question. Okay, question read करके समझना है. Most important, most precious things आपको बताने हैं जो एंजल ने गॉड को दिया. Leaden heart of Happy Prince and the dead swallow, right? This is your answer. Now, why were prince and the swallow so precious?
Prince और swallow precious क्यों थे? Because of their kindness and selflessness. Yeah, this is the correct answer. What did the prince do to make the people of his city happy? Prince क्या करते थे लोगों को हैप्पी करने के लिए? Told them story, gave them all his precious gems and stones, talked to people, made swallow fly and there. No, this is the correct answer, B. Okay. Now next, what did swallow to be with happy prince? What did swallow do to be happy prince? swallow ने क्या किया happy prince के लिए? So help him flying here and there, stop flying to distance, sacrificed his trip to Egypt. So he sacrificed his what? Sacrificed his trip to Egypt. उसने अपना जो ट्रिप था इजिप्ट के टुवर्ड्स वो सेक्रीफाइस कर दिया, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड swallow बिकम टू हेल्प द प्रिंस? व्हाट डिड swallow बिकम टू हेल्प? उसने कैसे किया? हिज मैसेंजर, हिज फ्रेंड, मिनिस्टर, असिस्टेंट, हिज मैसेंजर्स बनकर, ठीक है? नाउ वेयर डिड द swallow डाई? जो swallow था वो कहाँ डाई किया? इन द सिटी, under the fountain, at the feet of the statue. This is the correct answer. Next question, why did swallow die? Swallow क्यों मरा? Why? Here is the question, why? क्यों? Because of prince? No. Because of people's behavior? No. Because of growing cold. Yeah, this is the correct answer, C1. Okay, ठंड बढ़ रही थी इस वजह से. What happens when the swallow dies? क्या हुआ जब swallow जो था वो मर गया? So leaden heart of the prince was broken into two pieces. Yeah, this is the correct answer. Okay, जो prince का जो heart था वो ब्रोक हो गया था, टूट गया था. ओके, सो हियर इट वाज योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप. ओके, सो व्हाई वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वीपिंग? क्या वजह था हैप्पी प्रिंस का स्टैचू क्राई कर रहा था, वीपिंग कर रहा था? द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज वीपिंग बिकॉज when he had been alive, जब वो alive था, वो जिंदा था, he had not known any sorrow, उसे दुख के बारे में मालूम नहीं था. but after his statue had been erected, जब उसकी स्टेचू बनाई गई और वो उस कॉलम पे रखी गई बीचों बीच शहर के, he was able to see all the ugliness and misery of the city. वो वहाँ पर से कॉलम पर से he was able to see, वो देख सकता था ugliness and misery of the city. And even though he now had a heart of lead, he could still feel the pain which made him cry. Okay, this was your answer. Got it? Now what is next question? Why did the heart of the statue snap into two? हार्ट जो था, हार्ट ऑफ द स्टेचू, वो क्यों टूट गया, स्नैप क्यों हो गया? राइट नाउ आंसर, द मोमेंट द swallow died, जिस वक्त swallow जो था वो died गया, एट द फीट ऑफ द स्टेचू देयर वॉज अ क्यूरियस क्रैक इनसाइड द स्टेचू. राइट, वो एक आवाज आई, कुछ टूटने की आवाज, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. इट वॉज द लेडन हार्ट ऑफ द स्टेचू. वो क्या था? उसका लेडन हार्ट था स्टेचू का, विच हैड ब्रोकन एज सुन एज इट्स फ्रेंड डाइड. और जो टूट गया क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रेंड था वो मर चुका था. दैट्स वाई. हाउ डिड द कमिंग ऑफ द कोल्ड वेदर अफेक्ट द swallow? हाउ डिड द कमिंग ऑफ द कोल्ड वेदर अफेक्ट द swallow? जो वेदर, जो ठंड आ रही थी, वो किस तरह अफेक्ट किया swallow को? ही ग्रो कोल्डर बाय द डे but did not leave the statue of the happy prince, which he had come to love dearly. He ate the crumbs he found outside the baker's door and tried to keep warm by flapping his wings. Now next question. Why did the swallow delay his departure for the second time? सेकेंड टाइम swallow ने क्यों अपना डिले किया था डिपार्चर? डिपार्चर मीन्स व्हाट? उस जगह को छोड़ करके वो अपना इजिप्ट की ओर गया था. ओके, सो ही डिलेड हिज डिपार्चर फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज द प्रिंस आस्क्ड हिम टू डिलीवर वन ऑफ हिज फायर आइज टू अ पुअर यंग मैन इन अ गैरेट. राइट, तो प्रिंस ने उसे बोला था, याद करो चैप्टर में आपने पढ़ा था क्या? swallow, dear swallow, little swallow, please give this sapphire eyes to the
पुअर यंग मैन, राइट, गैरेट मीन्स जो डार्क अंधेरे रूम में है, ओके, हु वॉज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। उस यंग मैन को, उस प्ले राइट को दे आओ जो उस गैरेट में बैठा हुआ है और वो ट्राई कर रहा है एक प्ले राइटिंग का काम खत्म करने का, एक डायरेक्टर के लिए, मतलब थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए जो प्ले लिख रहा है उसे ये सिफायर दे आओ। बट he was too hungry, not but sorry, and he was too hungry and cold to write anymore, because वो बहुत hungry था, बहुत भूखा था और बहुत उसे ठंड लग रही थी, इस वजह से he was not able to write anymore. Okay, now next question is what did the swallow see in the city? swallow ने city में क्या देखा? He saw the rich making merry in the beautiful homes, right? This line is taken from your textbook as it is. While the beggars sat at their gates, he saw the starving children and two little boys hugging each other to keep warm. उसने क्या देखा कि जो स्टार्विंग बच्चे हैं, जो भूखे बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे, वो एक दूसरे को पकड़ करके कोशिश कर रहे हैं वार्म रखने की. They were hungry as well and were forced out into the rain by a watchman. और वो भूखे हैं और उन्हें फोर्सफुली जो वॉचमैन है वो उन्हें वहां पर से आर्क ऑफ द ब्रिज, राइट, वहां पर से उन्हें भगा दिया था वॉचमैन ने. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ डू द काउंसलर, राइट, सिटी काउंसलर एंड मेयर रिएक्ट ऑन सीइंग द ब्रोकन स्टैचू? जब सिटी काउंसलर और मेयर ने उस ब्रोकन स्टैचू, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? The councillor and mayor called the statue shabby. What is shabby means? Shabby means ganda, bhadda, right? Because of all the gold and precious stones no longer decorated it. क्योंकि अब उस जो आपके स्टैचू थी उस पर अब प्रीसियस स्टोन नहीं थे और वो गोल्ड भी नहीं थे, इस वजह से वो बहुत ही खूबसूरत नहीं दिख रहा था. दे फेल्ट दैट विदाउट दिस एम्बेलिशमेंट, जो भी डेकोरेशन थे, द स्टैचू लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ बेगर, और वो स्टैचू एक बेगर की तरह दिख रहा था. Moreover, they felt that the dead swallow at its feet added to the shabby condition of the statue. Thus, since the statue was no longer beautiful or useful, it should be pulled down and melted in the furnace. However, its lead heart did not melt, which was finally thrown onto the garbage heap with the dead swallow's body. Okay? Now, why is the frost called a dreadfully hard frost? फ्रॉस्ट को dreadfully hard frost क्यों बोला गया है? The frost had been called hard because the snow had hardened due to the cold. Snow जो है वो cold के कारण hard हो गया है. Further, it also refers to the swallow had wanted to migrate to warmer, this is warmer, climate in Egypt. He had stayed back. ओके, तो जो स्वलो था वो कहाँ जाना चाहता था? माइग्रेट होना चाहता था इजिप्ट में. ही हैड स्टेड बैक एट फर्स्ट अनविलिंगली, वो ना चाहते हुए भी हैप्पी प्रिंस के साथ रुका. टू हेल्प द पुअर पीपल बाय डिलीवरिंग द रूबी एंड सफायर, लोगों को हेल्प किया रूबी और सफायर देकर. लेटर वंस द प्रिंस वॉज लेफ्ट विदाउट आईज टू सी, बाद में जब सफायर देने के बाद वो ब्लाइंड हो गया हैप्पी प्रिंस, तो वंस द प्रिंस वॉज लेफ्ट विदाउट आईज टू सी, ही डिसाइडेड टू स्टे कीप हिम कंपनी इन दिस प्रोसेस, फिर वो उसके साथ रहने लगा. इन द प्रोसेस ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कोल्ड, तो फिर बाद में कोल्ड के कारण वो स्वलो जो था वो मर गया. ऑन फाइंडिंग हिज फ्रेंड डेड, इस चीज़ को जब उसे मालूम चला कि वो मर चुका है, हैप्पी प्रिंस को जब मालूम हुआ, द स्टैचू ब्रॉक, और इसका जो हार्ट था, स्टैचू हार्ट विल बेटर आंसर, ओके, स्टैचू का जो हार्ट था वो ब्रॉक हो गया, रिवीलिंग हिज लेडन हार्ट. दस द डेथ ऑफ these two selfless heroes cast a gloomy atmosphere. Now next question, what did the prince expect the young playwright to do with the sapphire?
प्रिंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा था उस प्ले राइट से, वो क्या करेगा सफायर को? डिड द स्वेलो विलिंगली एग्री टू द प्रिंस रिक्वेस्ट? The prince expected him to sell it to the jeweler and buy firewood so he could complete writing his play. तो वो इससे अपना राइटिंग कंप्लीट कर पाएगा. No, the swallow protested at first. पहले उसने प्रोटेस्ट किया था, मना किया था, as he wanted to continue on his journey, क्योंकि वो अपने जर्नी के लिए तैयार हो चुका था इजिप्ट जाने के लिए. However, he finally agreed to help the prince again. Now this is your long type question. This is only one question here, it is given. Okay, और अगर इसके अलावा आपके कोई भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं देन अभी हमने जितना भी शॉर्ट टाइप में प्रैक्टिस किया आप उसे लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, बट दिस इज क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन. मैन मेल्ट डाउन द स्टेचू. जो लोग हैं उन्होंने स्टेचू को जब मेल्ट डाउन किया. Yet the angels proclaim it is one of the most precious things in the city. किसने प्रोक्लेम किया? एंजल्स ने. Comment on the divergent viewpoint of the angels and humans with the reference to the story The Happy Prince. Okay, got it? क्वेश्चन समझना है पहले. जब उसके स्टेचू को मेल्ट किया, वो नहीं मेल्ट हुआ तो उसे फेंक दिया लोगों ने, लेकिन एंजल ने उसे फाइंड किया कि वो उस सिटी में सबसे प्रीसियस मोस्ट प्रीसियस थिंग्स है. तो एंजल्स के व्यू पॉइंट अलग थे, ह्यूमंस के व्यू पॉइंट अलग थे, तो इस चीज़ पर कमेंट करना है अपने व्यू इन द रेफरेंस टू दिस स्टोरी. तो हियर इंट्रो आंसर है एंड दिस इज रेफरेंस टू स्टोरी. ठीक है. नाउ ह्यूमंस आर अट्रैक्टेड टू मटेरियल थिंग्स. इंसान अट्रैक्ट होते हैं मटेरियल थिंग्स से एंड टेंड टू अप्रिशिएट ओनली आउटर ब्यूटी. सिर्फ आउटर ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं. दस द स्टेचू वॉज कंसिडर्ड ब्यूटिफुल व्हेन इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड लीफ एंड प्रीशियस स्टोन. लोग उसे तब तारीफ करते थे, ब्यूटीफुल समझते थे जब वो ब्यूटीफुल गोल्ड से और प्रीशियस स्टोन से डेकोरेटेड था, लाइक रूबीज एंड सफायर्स. However, when it was stripped of the gold and jewels, they declared that it was shabby and should be pulled down. On the other hand, the angels, okay, so now comparison kar raha hai, that's why it is written on the other hand. The angels looked into the mind and heart of all creatures. जो angels होते हैं, जो God होते हैं, वो हमारी mind और heart को देखते हैं all creatures के, and valued qualities like charity, selflessness and kindness above any external materials. ओके, और जैसे भी हो, सेल्फलेस हो, काइंडनेस हो, इन सब चीज़ों को वो एक्सटर्नल मटेरियल से ज़्यादा वैल्यू देते हैं. राइट. नाउ सो इन दिस स्टोरी वी हैव टू वेरी नोबल कैरेक्टर्स, द स्वेलो एंड द स्टेचू, who together help out several poor people in the city quietly without expecting praise or acclaim. Alright, so now here you can see उसने उन लोगों ने, स्वेलो ने और स्टेचू ने हेल्प किया था लोगों के, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी प्रेज और अक्लेम. ओके, द स्टेचू गिव्स एवरी वैल्यूएबल पार्ट दैट कैन हेल्प समवन even though it makes him look shabby and he goes blind. The swallow also risks his life by staying on in the cold weather instead of flying to warmer climates like its friends. स्टैचू की बात करें, हैप्पी प्रिंस ने अपने गोल्ड लीफ और जो भी चीज़ें थी, रूबी, सब कुछ दे दिया, और जबकि वो शैबी दिख रहा था, लुक अगली दिख रहा था फिर भी. एंड जो स्वेलो था वो, उसे ठंड लग रही थी, उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट चले गए थे, फिर भी वो वहाँ रुकना पसंद किया लोगों को हेल्प के लिए. इंस्टेड इट स्टेज बैक एंड हेल्प द प्रिंस इन हेल्पिंग अदर्स. दस their actions make them the most precious things in the city. Got it? Okay, hope so you have got this answer. Thank you.